विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मशीन ड्राइंग बी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल बेस्ड ऑन CSBTU भिलाई सिलेबस से यूनिट 3 में पार्ट ए स्क्रू फास्टनर्स, पार्ट बी रिवेटेड जॉइंट। यूनिट 3 के पार्ट ए स्क्रू फास्टनर में ड्राइंग ऑफ हेक्सागोनल नट एंड स्क्रू नट, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट एंड वाशर के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। स्क्रू थ्रेड in our day-to-day life we come across many objects where nut and bolt are used to join two pieces together. For example, we use wooden furniture like desk, stool, table, etc. in school, sewing bolts, nut and screws. Such machine parts which are used to connect two pieces together are called a fastener. There are two types of fastener: temporary fastener and permanent fastener. Threaded fastener like bolt and nut are temporary fastener. The process of joining different machine part of machine or engineering product is called a fastening. Permanent fastening such as welding, riveting, etc. join two parts together permanently and they cannot separate without breaking the fastening. But in case of temporary fastening, the parts are joined together temporarily and can be separated easily without the breaking the fastening. Screw thread, a continuous helical groove cut along the outer circumference of the cylindrical surface is called a screw thread. A screw thread is an operating element of temporary fastening. Screw thread occurs on practically all engineering products. Figure shows a screw thread helical groove on a cylindrical rod. Screw threads are widely used to temporary fastening as well as the transmission of power from one machine part to another. एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड, इसमें नॉमिनल डाया होता है। ये इसकी एक्सिस है, इसका ये स्लोप है, क्रेस्ट है, रूट है, ये पिच है, ये इससे यहाँ से डिस्टेंस पिच है, ये एंगल फ्लैंक एंगल है, ये फ्लैंक है, ये यहाँ से यहाँ तक पेरीफेरल का डिस्टेंस लीड है, ये इसका डेप्थ है, ये रूट डाया या कोर डाया है, आउटर डाया है। ये इंटरनल लेफ्ट हैंड थ्रेड इस तरह से होते हैं, एक्सटर्नल लेफ्ट हैंड थ्रेड इस तरह से होते हैं। Term used in threads are screw threads, external thread, internal thread, screw pair, parallel and taper threads, right hand and left hand threads, pitch P, lead L, single star and multi-star thread, crest, root, flank, thread angle, major diameter or outer diameter, minor diameter or root diameter or core diameter, nominal diameter, form or profile of screw thread. Form of screw thread. There are two basic screw thread profile: triangular or V thread, second square thread. ट्रेंगुलर और V थ्रेड दो तरह से होते हैं, BSW थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड भी दो तरह से होते हैं, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड। बोल्ट्स, in day-to-day life we can observe many machine parts joined by nut and bolt. Now let us study about the bolt. A bolt consists of a cylinder body, one end threaded and the other end converted into head. It is passed through clearance holes, diameter slightly more than the nominal diameter of bolt, in two or more aligned parts. A nut is screwed on the threaded end of the bolt to tighten the part together. Different type of bolts are used for different purposes. The shape of the head also depend upon the purpose for which the bolt is used. The length of a bolt is its total length, excluding the height or thickness of the bolt head. Bolt has external threaded, and external thread is represented by the discontinuous minor diameter circle. We are going to study about the following types of bolt: hexagonal headed bolt and square headed bolt. Hexagonal headed bolt. It is the most commonly used form of the bolt. The head of a hexagonal headed bolt is hexagonal prism with a conical chamfer rounded off at an angle of 30 degree on the outer end face. All dimensions of the hexagonal head bolt and hexagonal nut are same
except the height or thickness of the hexagonal head. The approximate height or thickness of the bolt head is 0.8 d. D is the diameter of the bolt. A little portion about 3 mm of the threaded and should remain outside the nut. अब हेक्सागोनल बोल्ट को किस तरह से बनाते हैं, इसके ड्राइंग बनाने के तरीकों को एक प्रॉब्लम लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं. Example number 1. Draw to scale 1:1 the front view and side view of hexagonal headed bolt of diameter 30 mm keeping the axis parallel to HP and BP. The length of bolt is 120 mm. So first of all हम क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचेंगे. इसमें हम इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो पैरेलल लाइन खींच करके यहाँ से इक्वल टू डी के बराबर चैम्फरिंग बनाएंगे. फिर एक ये वर्टिकल खींचेंगे. ये यहाँ से 2d + 6 का एक लेंथ का थ्रेडेड लेंथ लेंगे. अंदर का ये रूट डायमीटर 0.8d है. अब इसको साइड व्यू क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं सो हेड की वजह से छुप जाएगा, इसीलिए ये डैश डैश बनेगा. इस तरफ मतलब राइट साइड जो लेफ्ट साइड व्यू है, इसमें इनसाइड डायमीटर 0.8d और साइड d, इसमें 1.5d + 3 का एक सर्कल. इसके ऊपर हेक्सागोनल चैम्फर हम बना लेते हैं. इस चैम्फरिंग को अब हम प्रोजेक्ट करते हैं. प्रोजेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये इसको हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया, ये इस पॉइंट को हमने ये प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट को हमने ये प्रोजेक्ट किया और इस पॉइंट को हमने इस तरह से ये हेड हेक्सागोनल हेड बना. इसके अंदर चैम्फरिंग पार्ट के लिए देखिए, यहाँ से 30 और यहाँ से 30 हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हमको 60 एंगल मिल जाता है. और इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करते हैं. अतः इस पॉइंट से अगर हम आर्क बनाते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल का चैम्फर पार्ट बन गया. ये फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो राइट साइड बनाते हैं. और इसका यह टेबल, जितने भी इन्वॉल्व में हम डायमेंशंस लिखे हैं उसको डायमेंशन कन्वर्ट करके टेबल बनाते हैं. इस तरह से हेक्सागोनल बोल्ट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ. स्क्वायर हेडेड बोल्ट, it is also the common form of the bolt and is generally used where the head of the bolt is to be accommodated in a recess. The recess itself is in the form of square in which the head rests having a little clearance. The square recess prevents the head from the rotating when the nut is screwed on or off. When the square head of the bolt projected outside the part to be joined, it is provided with a square nut. The dimensions of the square head are as those of the square nut except the height or thickness. Let us now learn how to draw the view of square headed bolt. अब देखिए कैसे ड्रा करते हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट. क्वेश्चन लिखिए, ड्रा टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू एंड प्लान ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट व्हेन इट axis is perpendicular to HP. Take the diameter of the bolt as 24 mm and length as 110 mm. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सिस ड्रा करेंगे. इसमें इसका फ्रैंक लेंथ को हम ड्रा करेंगे. उसमें ये 0.8d और ये d का डायमीटर हमने लिया. इसका टॉप व्यू में ये हमने 0.8d, फिर d, फिर 1.5d, फिर इसमें स्क्वायर हेड हमने बना दिया. इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं. ये देखिए, इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, इसके किया. इसकी हाइट हमने 0.8d लिया. इसमें यह पार्ट देखिए, हमने यहाँ से यहाँ पर r = 2d लेकर इसको चैम्फर बनाया. और ये 1.5d + 3 0.8d एंड सैंक लेंथ. ये इस तरह से स्क्वायर हेडेड बोल्ट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ. इसके में जो भी हम जो वैल्यूज हैं उसको हम चार्ट के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें बनाने में इजी होगा. नट्स, ए नट इज ए मशीन एलिमेंट हैविंग ए थ्रेडेड होल that engaged with the threaded end of the bolt. There are different type of nut is in use. The most commonly used type of nut is hexagonal nut. It is a hexagonal prism provided with a threaded hole. Upper corner of
a nut or chamfer are rounded off. Chamfering is done to remove sharp corner to ensure the safety of the user. The angle of chamfer is usually 30 degree with the base of the nut. The chamfering gives us on the vertical faces of the nut and the circle on the top surface of the nut. The chamfering circle on the top surface touches the midpoint of all the side of nut, which can be seen in the top view. A square nut is also one of the main form of nut. It is the square prism provided with the threaded hole. The upper corner of hexagonal nut are chamfered in the same way as the hexagonal nut. Now let us learn draw to view of square nut. पहले हम हेक्सागोनल नट को ड्रा करते हैं, फिर स्क्वायर नट ड्रा करेंगे। लिखिए, ड्रा टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल नट ऑफ साइज M30 कीपिंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP, गिव स्टैंडर्ड डायमेंशंस। पहले देखिए इस तरह से हमने एक्सिस बनाया, उसमें ए 0.8D, फिर ए D, फिर 1.5D प्लस 3 का हमने सर्कल ड्रा किया। इसमें हमने इसके टेंजेंट पे हेक्सागोनल बनाया। इसको फिर हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करके इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। देखिए, ए पॉइंट से ये प्रोजेक्ट हुआ, इस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट हुआ, इस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट हुआ और इस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट हुआ। इसकी हाइट इक्वल टू D रहती है। ये डैश डैश मतलब ये देखिए, ये वाला जो है डैश डैश यहाँ आएगा और ये वाला ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर, इसलिए वह नहीं दिख रहा है। यहाँ 30, यहाँ 30 से 60, यहाँ इस 60 से ये आर्क हमने बनाया और इसके पैरेलल ये लाइन ले लिया, इसके पैरेलल ये लाइन ले लिया। अब इनसे मिला करके इसको हमने चैम्फर बना दिया। अब इसका साइड व्यू, ये देखिए, इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, प्रोजेक्ट किया, देन इस पॉइंट को हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया और इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, ये इसको प्रोजेक्ट किया, इस तरह से बन गया। अब इन दोनों का हाफ निकाल कर इससे हमने इक्वल टू R से ये इसका चैम्फरिंग बना दी है। इसके बाद यह पॉइंट, ये देखिए, ये इससे डैश डैश से ये आया, ये इसको हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ये इसको हमने ये इस तरह प्रोजेक्ट किया और ये इसको हमने इस तरह प्रोजेक्ट, यानी अंदर के दोनों होल को जो हमको क्लियर इधर से नहीं दिखेगा, इस पॉइंट में हमने डैश डैश से प्रोजेक्ट किया। इस तरह से हेक्सागोनल नट कंप्लीट हुआ। The size of chamfer circle can be taken 1.5D or 1.5D plus 3 in square hexagonal nut and bolts। ये जो 1.5D plus 3 के बजाय 1.5D भी अगर लेंगे तो गलत नहीं है, ये भी चलता है। अभी हम फाइनली हमने चार्ट बना दिया कि D हमारा 30 था, 0.8D 24, 1.5D 48 आया। इस तरह से ये हेक्सागोनल नट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। Next, draw to scale 1:1 the front elevation and plan of a square nut of diameter 25 mm, keeping the axis vertical and two of the opposite edges of square parallel to BP। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्टिकल लाइन ड्रा किए, फिर हॉरिजॉन्टल किए, 0.8D और D ड्रा किए, फिर 1.5D प्लस 3 लिए, इस पर हमने स्क्वायर का टेंजेंट हमने बना दिया। इस तरह से इसका टॉप व्यू ऑफ स्क्वायर नट कंप्लीट हुआ। इसको प्रोजेक्ट करके हम ड्रा किए, देखिए दोनों होल को हमने इसे डैश डैश से शो किया है और ये R इक्वल टू 2D के से हमने आर्क बना दिया। इस तरह से इस स्क्वायर नट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ और ये हमारा टेबल जो वैल्यू इसमें यूज हुई उसको हमने यहाँ चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया। इस तरह से ये स्क्वायर नट का क्रॉस फ्लैट ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अब हम ड्रा टू स्केल 1:1 फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट ऑफ डायमीटर 25 mm विथ हेक्सागोनल नट एंड वाशर कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू BP एंड HP। एक बोल्ट में एक वाशर और नट के साथ उसकी पूरी असेंबली को अब हम यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, पहले हम बोल्ट को इस तरह से पहले पूरा कंप्लीट बना लेंगे। इस तरह से हेक्सागोनल हमारा बोल्ट
इसका ये साइड व्यू, उसके हेक्सागोनल हेड, इसको प्रोजेक्ट करके बोल्ट का हमने हेड बना लिया। ये देखिए इसके हेड कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम नट लगाएंगे। ये देखिए हेक्सागोनल नट हमने लगाया। इसमें भी जिस तरह हेड में हमने बनाया 60-30, उसी तरह से इसमें हेड भी हमने कंप्लीट किया। अब हमने एक वाशर, जो इसका डायमीटर, इस वाशर का जो डायमीटर है 2D+3 होता है डायमीटर, D मतलब ये, और ये थिकनेस होता है D/6 होता है इस वाशर के लिए। इस तरह से ये वाशर कंप्लीट हुआ। इसका इस असेंबली नट बोल्ट और वाशर के ये असेंबली का टॉप व्यू